अरे मैडम जी कॉलर बना रहा हूँ। नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं अब। Welcome back to my YouTube channel. So today's vlog is about a work day in my life. I'm going to take you through the whole setup which I created for my workplace, like my office, and basically I own a small factory which I started up recently. So I'm going to take you through all of that in my today's vlog. I look so clumsy, so oiled up right now because it's 9 a.m. and I just woke up and it's too hot in here. Talk about a lot of work stuff today and how basically what my factory is all about, what my work is all about, how long have I been in this field. We're going to talk about a lot of my experiences about and my struggles about it. So let's get started with the video. Hi guys, so I'm back after taking a shower and usually मैं everyday wear के लिए ऑफिस में इंडियन पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ because to be look a little professional and because थोड़े workers भी होते हैं. But today I'm taking a fusion look and I'm wearing this chikankari kurta along with a pair of jeans. Okay, so now I'll start prepping my skin. Okay, I thought of pairing these earrings with my look. वैसे मैं थोक खोल देती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पहन नहीं पाती हूँ बिकॉज मेरी इयरिंग्स दर्द करने लग जाते हैं या ओके दैट्स अबाउट इट दिस इज अबाउट टुडेज लुक माय हेयर इज नॉट दैट इट्स नॉट अ गुड हेयर डे फॉर मी बट स्टिल I'll tie it into a bun like after I reach my office. Okay guys, let's see you at the workplace. This is my cabin basically and I'm gonna show you the view from here. It's basically a road facing plot and यहाँ से पूरे road का view दिखता है guys, which is the best part. I love this part because it's so amazing and also the office looks really messed up right now because I organize everything. I don't let people enter like my cabin when I'm not there. So I just entered and I will just organize. These are the some of the awards which I received from my college. Some books and some files and these are cute little things which I decorated my cabin with. So that's about it. So I'll just brief you up a little bit. Basically, I own a small factory, which is like a manufacturing unit, and I manufacture for women. Like I manufacture women's gowns. And इधर हम मैंने मशीन्स की सेटअप करी है, फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी मशीन से क्या है. सो उसके पहले आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफ यू अप अ लिटिल बिट अबाउट हाउ आई स्टार्टेड एंड हाउ आई थॉट ऑफ दिस आइडिया. सो around 2 years back I came to Jaipur with a view that yeah मैं job करूँगी and then as you all if even if you don't know that I have done my masters in fashion from Pearl Academy Delhi and वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स पूरा किया एंड उसके बाद आई मूव टू जयपुर वाई बिकॉज बेसिकली मुझे वहाँ पे एक जॉब मिल गई थी जयपुर में दैट दिस प्लेस कॉल्ड सोला जयपुर. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर एंड मैं वहाँ पे अपना टेक्सटाइल आई वाज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर ओवर देयर एंड आई ऑल्सो यूज टू मैनेज सम अदर थिंग्स. सो मैं वहाँ पे काम कर रही थी एंड देन एज़ यूजुअल लॉकडाउन लग गया एंड देन सबकी जॉब्स चली गई, उसमें से मैं भी एक थी, मेरी भी जॉब चली गई थी एंड देन आई जॉइन द कॉल सेंटर जस्ट टू सस्टेन एंड सर्वाइव इन दैट लॉकडाउन बिकॉज ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम. या सो बेसिकली there's this office
आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, बट आई वॉज वर्किंग देयर, इट्स लाइक अ कॉल सेंटर, और मैं वहाँ पे नाइट शिफ्ट कर रही थी बिकॉज जिस दिन आई स्टिल रिमेंबर, जिस दिन मेरी जॉब छूटी थी उसके जस्ट अगले दिन आई गॉट सो पैनिकी कि शिट अब मैं क्या करूँ, एंड अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊँ, एंड हाउ विल आई सर्वाइव, हाउ विल आई पे माई रेंट्स, हाउ विल आई पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड अदर बिल्स. सो बेसिकली आई थॉट कि आई शुड टेक अ जॉब एज सून एज पॉसिबल. और फिर मैंने इसके लिए उधर अप्लाई किया, एंड थैंक गॉड, थैंकफुली आई गॉट अ जॉब ओवर देयर. और मैंने वहाँ पे नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करी. इट वॉज अ वेरी टीडियस, आई मीन नाइट शिफ्ट, पीपल हु आर डूइंग नाइट शिफ्ट जॉब्स, हैट्स ऑफ टू यू. इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज बेसिकली जो नींद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रात को आएगी ना, वो नींद आपको मॉर्निंग टाइम में नहीं आ सकती है. सो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई लिटरली लॉस्ट अराउंड 5 to 6 kilos ऑफ वेट बिकॉज नींद नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ माई जॉब. पूरी रात हमें सिस्टम पे बैठ के, इट वॉज बेसिकली अ चैट प्रोसेस, एंड वहाँ पे पूरी रात मुझे कस्टमर इंक्वायरीज हैंडल करने पड़ते थे. एंड और मैंने काफ़ी कुछ सीखा. बेसिकली आई मेड न्यू फ्रेंड्स ओवर देयर. बट सिंस मैंने वहाँ पे जॉब करा तो क्या हुआ था कि मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लग गई थी. इट वॉज अराउंड 4 to 5 months आई कुड कंटिन्यू, एंड उसके बाद आई कुडंट कंटिन्यू. एंड देन 4 to 5 months के बाद जैसे ही धीरे धीरे लॉकडाउन थोड़ा ईज आउट हो गया था. इट वॉज दिस वॉज सेकेंड लॉकडाउन विच आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा ईज हो गया था, उसके बाद मैंने सोचा कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर लोकल ओवर हियर, so they like motivated me a lot कि yeah, you should start up something of your own. And I was always around this feeling कि यार ठीक है. I knew पहले से, because I have a business family background, so पहले से I had this perception कि I knew ज़्यादा लंबे टाइम तक I won't be able to work in a company as an employee. I should have something of my own very soon. So some of my friends who were local over here, मैं ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी यहाँ पे because I was new to this place. बट देन दिस वॉज अ कन्फ्यूजन कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ या आई शुड मूव बैक टू माई होम टाउन कैलकटा, देयर आई शुड डू समथिंग. बट देन आई थॉट कि इट्स नो पॉइंट बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस सिटी. आई हैव लाइक known, I've made contacts, I've known people over here, so I should just like get on with it and start up something of my own. So 2 years back, I started something of my own, and then that time I didn't have a factory. I just started with a perception कि नहीं ठीक है, धीरे धीरे आउटसोर्स करेंगे. तो बेसिकली आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू डिज़ाइंस. मैंने कुछ सोचा नहीं था इनिशियली स्टार्टअप के टाइम पे कि मैं क्या करूँगी. थोड़े बहुत जो भी सेविंग्स थे, मैंने अपने डिज़ाइंस क्रिएट करना शुरू किए धीरे धीरे. एंड डिज़ाइंस क्रिएट करते जैसे ही मैंने उनको थोड़ा मार्केट में लॉन्च किया, स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि यार स्टार्टेड अप विद दिस थिंग. तो मुझे छोटे छोटे ऑर्डर्स आने लगे. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट ऑर्डर विच आई गॉट वॉज फ्रॉम वन ऑफ माई रिलेटिव ओनली बेसिकली. तो उन्हें जस्ट ये पता चला कि मैं डिज़ाइनिंग शुरू की हूँ, एंड दे न्यू कि आई हैव अ डिज़ाइन बैकग्राउंड. दे जस्ट केम टू विजिट मी ऐसे, एंड दे सॉ कि मैं क्या डिज़ाइन करने लगी हूँ, क्या बनाती हूँ. जस्ट सॉ रैंडमली एंड दे लाइक माई डिज़ाइन. सो दे वर लाइक कि आप how I got into this business basically. So they offered me my first order. They looked into my designs and they were like कि आप इसकी 50 pieces बना सकते हो क्या. तो उस टाइम पे I got little panicky because I was into retailing and I was into my online, मेरा एक ऑनलाइन वेबसाइट भी था. It's my firm's name, कारखाना. So कारखाना is basically कारखाना बिकॉज यहाँ पे फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस को कारखाना बोलते हैं. सो आई थॉट कि वाई नॉट माई कंपनीज नेम. सो मैंने बेसिकली चालू किया, एंड देन आई थॉट कि या ओके फाइन. उस टाइम पे आई वॉज लिटिल पैनिकी कि हाउ विल आई डू लाइक 50 pieces इज़ अ बिग, लाइक एक न्यूबी के लिए ऑब्वियसली इट वॉज अ बिग डील. बट देन सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर सपोर्टिंग मी टू स्टार्ट अप माई फैक्ट्री, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि या यू शुड टेक दिस ऑर्डर एंड देन वील हेल्प यू. एंड देन उस टाइम मेरे पास ज़्यादा लेबर्स के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे बिकॉज एज यू नो हमारी फील्ड में लेबर्स का होना बहुत ज़रूरी है. लाइक यू आर लिटरली लाइक अ हैंडी कैप विदाउट योर लेबर्स. बेसिकली आप फैक्ट्री सेटअप भी कर लोगे और आपके पास लेबर नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो यू आर वर्क, बेसिकली माई वर्क डिपेंड्स ऑन हाउ आर लेबर इज़. सो या देन आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर एंड देन मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने प्रोसेस किया ऑब्वियसली गाइज. तो माई फर्स्ट ऑर्डर वॉज अ मेस. मेरा फर्स्ट ऑर्डर वॉज सच अ मेस कि मैंने बहुत गलतियाँ करी, बहुत गलतियाँ, मतलब मेरा पूरा नुकसान हो गया. मैंने बहुत गलतियाँ करी. फिनिशिंग अच्छा नहीं था एंड बेसिकली साइजेस में इशू था, फिनिशिंग अच्छा नहीं था. एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेड दैट मिस्टेक बिकॉज अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करती ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ. सो माई फर्स्ट ऑर्डर वॉज कम्प्लीट रिजेक्शन. लाइक मुझे पूरा का पूरा लॉट उन्होंने वापस कर दिया. इंस्टेड ऑफ बीइंग माई रिलेटिव they literally returned. And obviously I don't want कि relative हो तो yeah you do a favor for me and then you accept whatever shit I'm making. I'm not saying that, but yeah
कभी कभी कहते हैं ना लाइफ में झटका लगना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो मुझे ऐसा एक झटका लगा था उस टाइम पे, छोटा सा झटका था मेरे लिए. एंड देन दे रिटर्न ऑल ऑफ माई गुड्स, ऑल ऑफ माई बेसिकली उन्होंने मुझे सारा रिटर्न कर दिया था मेरा. एंड देन आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड. मैं उस टाइम पे इतना ब्रेक डाउन हो गई थी कि यार मैं क्या करूँ, शिट. मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर सबका बहुत अच्छा जाता है, फर्स्ट डिलीवरी, डिस्पैचिंग एंड एवरीथिंग. बट आई डेंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन आई हैड एक्सपीरियंस लाइक ऑब्वियसली कॉलेज की पढ़ाई और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट. एंड इवन विद द प्लेस इफ़ यू थिंक कि मैंने कहाँ काम किया हुआ है, दैट वॉज ऑल्सो बेसिकली डिज़ाइन अ बुटीक. आई डि नॉट हैव एक्सपीरियंस इन लाइक मेकिंग बल्क ऑर्डर्स एंड होल सेलिंग एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई होल सेल बिजनेस. सो मेरा फर्स्ट ऑर्डर मैंने रिजेक्शन में गया. बट मैंने उनको ये बोला था दैट टाइम कि ठीक है ये फर्स्ट वाला ऑर्डर है, तो मैं आपको मैं सोची कि नो, आई जस्ट कुडंट टेक अ स्टेप बैक एक ऑर्डर की वजह से. आई टोल्ड देम दैट आई अश्योर यू कि मैं वापस आपको दोबारा बना के दूंगी. एंड मैं वो 50 पीसेस दोबारा से बनाए विथ ऑल द मिस्टेक्स. आई लिटरली टेकन केयर ऑफ ऑल द मिस्टेक्स विच आई हैड मेड इन दैट प्रीवियस ऑर्डर. और फिर मैंने वो 50 पीसेस दोबारा बनाए, दोबारा से मैंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, दोबारा से प्रिंटिंग हुई और फिर मैंने उनको डिलीवर किया. एंड थैंकफुली इस बार मेरा ऑर्डर पास हो गया था. एंड आई दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड माई डिज़ाइन की हाँ फिनिशिंग वगैरह इट वॉज ओके, इट वॉज अप टू द मार्क. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. 50 से फिर मुझे 100 ऑर्डर्स मिलने लगे. एंड देन उसके बाद 150 पीसेज, 200 पीसेज. सो राइट नाउ आई एम इन टू अ कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइक 500 to 600 pieces per design. That is a very small scale business. I will not say it's a very large scale business, but ठीक है, एवरीथिंग टेक्स टाइम. आई ऑल्सो गेट समटाइम्स वेरी पैनिकी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हो पा रहा है. एंड देन आई एम लैगिंग बिहाइंड अदर पीपल. आर यू जस्ट मेकिंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट बाय दिस बिजनेस. बट देन आई टेल दिस टू माई सेल्फ दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड आई शुड नॉट रश अप टू थिंग्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अप. सो दिस इज़ इट बेसिकली. ऐसे मैंने अपना स्टार्ट किया, अपनी वर्किंग स्टार्ट की. So now basically I will brief you up with like little bit of factory tour and what process we go through. हम क्या process से गुजरते हैं, क्या क्या हम manufacture करते हैं. I'll show you some of my samples also. And basically yeah, that's about it. दिलीप जी हाय बोलो. हाँ बोलो. अरे हाय बोलो. हाय. हाय. क्या बना रहे हो आप? अरे मैडम जी कॉलर बना रहे हो. कॉलर बना रहे हो पीस का? हाँ. अच्छा, इस तरीके से जोड़ते हो कॉलर आप? हाँ. अरे अशोक जी आप क्या बना रहे हो? लेबल लगा रहा हूँ पीस में लेबल लगा रहे हो? सब ब्रीफ करती हूँ अपने काम के बारे में. बेसिकली क्या होता है कि आई वॉज बेसिकली अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर एज आई टोल्ड यू. बट द प्रोसेस विच आई गॉट इन टू इज़ बेसिकली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. नाउ मैन्युफैक्चरिंग व्हेन वी टॉक अबाउट, अब इसमें पूरा का पूरा जहाँ से टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है वहाँ से लेके एंड प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द फिनिशिंग, डिस्पैचिंग, सो एवरीथिंग इन्वॉल्व्स बेसिकली. एंड दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ वेरी टीडियस प्रोसेस. सो बेसिकली काम ऐसे मेरा चालू होता है. This is the file in which we like develop textiles. और मैं इसको पूरा अपने स्वॉच बुक को मेंटेन करती हूँ. इसमें like color options, print options. So this is like a library for me which I have created. इसमें मेरे सारे textiles की details होती है, which fabric to use, what to use basically, and how many printing options can I offer to for a season. And obviously I have to make according to a season, because obviously winter के time पे we have to work on dark colors and summers के time पे we have to work on pastel shades and light colors as preferred by the market. So we have to work according to the market. So right now this is just a swatch book to show. So these are some of the new textiles which we have developed. It's called marble print. तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस जो विच इन्वॉल्व्स इनटू माय बिजनेस इज़ व्हाट द फर्स्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की. आप अपने टेक्सटाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो एंड देन उसके बाद क्या होता है, सो वी चूज़ द फैब्रिक कि किसके ऊपर हमारा बायर चाह रहा है कि हम उसके प्रिंट का ऑप्शंस भेजें. तो बेसिकली आई हैव अ स्वॉच बुक ओवर जो मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे टेक्सटाइल्स को. लाइक इट्स दिस इज ऑल्सो लाइक अ लाइब्रेरी. सो आई यूज़ दिस
file and I like store everything, like all the textiles which I use, क्या options दे सकती हूँ मैं buyer को, so that when we have a meeting with the buyer मैं यहाँ पे उनके साथ discussion करके finalize कर सकूँ. And then उसके बाद we develop a sample basically after approving the swatches. The buyer sits and then ऐसे खाका बनता है. I'll show you one of the खाकाs which I have. So this is basically an embroidery का you know, it's like a rough design of an embroidery कि आप किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी करवाना चाह रहे हो, because I deal into domestic market and I deal into a lot of embroidery and stuff, hand embroidery, computer embroidery, machine embroidery, everything. So basically हम लोग खाका फाइनलाइज करते हैं. We create samples उसकी थ्रेड की मैचिंग के हिसाब से कि which type of design will go with which type of print and what colors to use, and that involves a lot of planning and everything. So वो सब finalize होने के बाद we develop a few samples. So I'm going to show you few samples which I developed after all these processes which we do. And उसके बाद after developing a sample then वो buyer के पास जाता है for approvals. और उसके बाद वो buyer उसमें से हमें quantity and then so guys these are some of my samples जिसकी मैंने अभी डिलीवरी दी है बेसिकली. तो दिस इज़ द खाका विच आई एम टॉकिंग अबाउट. ये खाका से दैट मीन्स ट्रेसिंग से हम इसकी एम्ब्रॉयडरी डेवलप करते हैं और फिर प्रिंट प्लान करते हैं कि इसमें क्या प्रिंट होना है क्या नहीं. सिमिलरली फॉर दिस एज़ वेल, एंड इसके लिए भी वैसा ही कुछ है. तो ये करने के बाद हम फिर बायर को सेंड करते हैं अपने डिज़ाइंस, और फिर उसके बाद वो ऐसे ही हम ये सैम्पल बायर को भेजते हैं. बिकॉज़ जैसे कोई इंक्वायरी आती है और बायर बोलता है कि हाँ चलो आपके पास कुछ नए सैम्पल्स हैं तो आप सेंड कर दो, तो आई सेंड इट विद माई स्टाफ एंड समटाइम्स इवन आई गो एंड विजिट हिम एंड देन इट्स नाइस टू कैच अप विद बायर्स, लाइक यू शुड बी इन टच. तो मैं जाती हूँ और फिर उसके बाद भी डिस्कस करती हूँ क्वांटिटी, रेट्स वगैरह, क्या उसमें ओपन कॉस्टिंग मुझे देनी पड़ती है, कहाँ पे कितना एक्सपेंस लग रहा है. दैट्स बिकॉज कि वो हमें क्वांटिटी में ऑर्डर देते हैं, इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि बेसिकली ट्राई करती हूँ मैं कि उनको प्रॉपर से प्रॉपर अच्छी से अच्छी कॉस्टिंग मैं दे पाऊँ. एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस विद दैम. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको जेन्युइन रेट से डिलीवर कर पाऊँ विद बेस्ट क्वालिटी. एंड देन अगर कोई सैम्पल में चेंजेस होता है तो वो उस मीटिंग में फिर डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि ये चेंजेस होना है, मतलब बेसिकली क्या क्या चेंजेस होना है सैम्पल में. एंड देन ही कन्फर्म्स द ऑर्डर. आई हैव टू गिव अ डिलीवरी डेट. यूजुअली गाइस डोमेस्टिक मार्केट में इट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फेस्टिवल पड़ जाता है, लेबर्स की कमी हो जाती है, लेबर चले जाते हैं, लेबर टाइम पे काम करके नहीं दे पाते. तो मोस्ट ऑफ द टाइम डोमेस्टिक मार्केट में ना हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, लाइक 20-25 डेज़ में हमको डिलीवर करना पड़ता है. एंड उतने से दिन में आई हैव टू मेक 300, 400, 500, 600 डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ पीसेस. सो बेसिकली वी हैव टू डिलीवर इतने पीसेस इतने दिन में, बट जो कि कभी कभी डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस. तो इन दैट केस हम अपने बायर को बोल देते हैं, वॉर्न कर देते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है. समटाइम्स टाइम पे हो भी जाता है डिलीवर. एंड देन पेमेंट टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम अपना ऑर्डर को स्टार्ट कर देते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू माई कटिंग एरिया, जो कि सबसे पहले जब टेक्सटाइल्स हम रिसीव कर लेते हैं प्रिंटर से, रॉ मटेरियल्स आ जाता है टेक्सटाइल का, उसके बाद हम उसको प्रिंटिंग पे देते हैं. एंड उस पर स्क्रीन या ब्लॉक प्रिंटिंग वट एवर द डिज़ाइन रिक्वायर्स, वो होने के बाद उसकी कटिंग होती है. सो आई शो यू माई कटिंग एरिया. आई हैव अ फ्लोर विच इज़ अबव दिस फ्लोर, एंड वहाँ पे मैंने अपना कटिंग सेटअप करा हुआ है. बेसिकली वहाँ पे मेरे लेबर्स रहते भी है. सो इट्स अ बिट ऑफ मेसी प्लेस, बट देन स्टिल आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू माई कटिंग एरिया. आई एम गोइंग टू शो कि मेरे पास क्या क्या कटिंग्स पड़ी है ऊपर. एंड अभी मेरी रिसेंटली 3 स्टाइल्स की कटिंग हुई है. इट वॉज अ स्मॉल क्वान्टिटी बट विद डिफरेंट कलर्स. आई एम गोइंग टू शो यू की कटिंग का कैसे. बेसिकली माई टेरेस एरिया, ऑफिस की बिल्डिंग का जो टेरेस एरिया है वो है. आई एम गोइंग टू शो यू द व्यू फ्रॉम हियर. एंड देन ये वाला जो फ्लोर है, यहाँ पे आई हैव अनदर फ्लोर, सेपरेट फ्लोर विच आई केप्ट फॉर माई कटिंग एरिया. एंड दिस इज़ बेसिकली द टेरेस. गाइज दिस इज़ हाउ माई कटिंग एरिया लुक्स लाइक. सो बेसिकली अभी कल की बात है, कल हमारी एक स्टाइल की कटिंग हुई है. दिस इज़ द स्टाइल, इट इज़ मेड इन टाई डाई. दिस इज़ द टाई डाई फैब्रिक एंड इसमें हमारा एक स्टाइल आने वाला है. सो आई कॉन्ट डिस्क्लोज द स्टाइल राइट नाउ बिकॉज ऑफ प्रिवेसी टर्म्स विद द बायर, बट या आई कैन ऑब्वियसली शो यू द कटिंग. सो ऐसे इस टेबल पे, सो दिस इज़ लाइक अ 40 फीट लॉन्ग टेबल. तो ये टेबल जो है ये 40 फीट लॉन्ग है एंड इस पर पूरे की पूरी टेबल के ऊपर कपड़ों की लेयर बिछती है. लाइक इफ़ यू हैव टू कट लाइक 100 पीसेज और 200 पीसेज, तो उतनी लेयर इसमें अमाउंट डिपेंड्स ऑन द साइजेस विच यू वांट टू कट. तो इसमें लेयर कटती है.
एंड आफ्टर द लेयरिंग, सो दिस इज़ अ कटिंग मशीन विच आई हैव. इस कटिंग मशीन के बदौलत वो फैब्रिक्स की कटिंग होती है. सो दिस कटिंग मशीन इज़ फ्रॉम लीपू. ये मैंने सेकेंड हैंड लिया था व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड अप विद माय बिजनेस, बिकॉज उस टाइम मेरे लिए फर्स्ट हैंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. सो मैंने सेकेंड हैंड लिया था. सम ऑफ द अदर डे गाइस आई एम गोइंग टू शो यू द कटिंग प्रोसेस ऑल्सो. वो आज नहीं हो पा रहा है कटिंग हमारे यहाँ फैक्ट्री में, तो हम आज उसको दिखा नहीं पाएंगे, बट दिस इज़ द वे होती है. सो दिस इज़ अनदर कटिंग. इसका भी एक होने वाला है प्रोडक्शन. इट्स बेसिकली अ कुर्ता एंड पैंट एंड दीज आर द स्क्रैप्स विच आई डोंट थ्रो. सो माइंडेड गाइज, जहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ऐसे टेक्सटाइल स्क्रैप्स है, प्लीज़ यूज़ इट. इवन आई यूज़ इट, आई डोंट थ्रो देम. दिस इज़ अ स्मॉल कटिंग मशीन. ये यूज़ होता है छोटी मोटी कटिंग्स के लिए, लाइक 50 पीसेज और मे बी 100 पीसेज. तो वो जो छोटी लॉट की कटिंग होती है वो इस मशीन में करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है. सो द मास्टर जी यूजेज दिस कटिंग मशीन एंड दीज आर द पैटर्न्स. इन ये पैटर्न्स को यूज़ करके लेयरिंग के बाद यू हैव टू लाइक पुट द पैटर्न्स, डू द मार्किंग ऑफ द पैटर्न, एंड देन उस मार्किंग के अकॉर्डिंग दे यूज़ दिस मशीन टू बेसिकली कट एंड टेक आउट द डिफरेंट स्टाइल्स. दिस इज़ अनदर कटिंग. इसी स्टाइल में हमारा ये एक और कलर की कटिंग पड़ी है गाइस. तो ये कल से हमारा प्रोडक्शन चालू होने वाला है फैक्ट्री में. दिस इज़ अनदर कटिंग. ये भी एक और कलर की कटिंग है. सो बेसिकली सो इट्स बेसिकली लाइक जैसे कि आपके लेबर्स काम कर रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि हाँ आज इनका ये स्टाइल उतर जाएगा, मतलब जो वो बना रहे हैं बेसिकली दैट इज़ दिस लॉट. वो अभी जो बना रहे हैं इट्स 235 पीसेस का लॉट एंड इट्स फ्रॉम मैक्स फैशन व्हाट दे आर मेकिंग. सो वहाँ का कुछ फैब्रिकेशन का ऑर्डर था विच आई टुक एंड देन टुमारो आई हैव टू डिलीवर दैट. सो टुमारो कल सुबह की डिलीवरी के बाद दे आर बेसिकली फ्री. सो सिंस दे आर फ्री तो हम अपनी ये जो पीली वाली कटिंग थी जो मैंने आपको अभी दिखाया उससे हम चालू करेंगे. उसका मैंने आज ही उन्हें ब्रीफ अप कर दिया कि कैसे आप स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ों से स्टार्ट करना है. सो ऑक्यूपाइड, सो दे डोंट सिट एंड देन वेस्ट द टाइम. दे आर पीपल हु वर्क ऑन पर पीस बेसिस, लाइक दे गेट पेड फॉर द अमाउंट ऑफ पीसेस दे मेक. हाय गाइस, so I'm back home and it's raining outside as you can see. Had a very long and productive day at work and I hope you like the video. Like, share and subscribe with your friends, relatives, family, and stay tuned for more updates and such vlogs. Thank you for watching. Bye bye.